মণ্ডপে থাকার কথা নয়, পিছনের হলে অপেক্ষা করব। এরপরে অতিথি বরণের জন্য সবাই আমরা উঠে দাঁড়াবো, বন্দে মাতরম হবে। যারা এখানে হাল্লাগুল্লা করছেন তাদের প্রতি অনুরোধ, সিকিউরিটির বন্ধুদের কাছে অনুরোধ, বাকিদের সঙ্গে কথা বলে বাইরে অপেক্ষা করতে বলুন, নিজের মধ্যে কথা বলবো না। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, সুজলাম সুফলাম মলয়জ শীতলম শস্য শ্যামলম মাতরম, বন্দে মাতরম, শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী, ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমধুর শোভিনী, সুভাষিনী সুমধুর ভাসিনী, সুখদাং বরদাং মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। भारत माता की, भारत माता की। এরপরে যারা সাংবাদিক বন্ধু আছেন তাদের প্রতি অনুরোধ, আমাদের সাংগঠনিক বৈঠক শুরু হবে, ছবি তবি নিয়ে 2 মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে যাওয়া, বরণের পরেই। প্রথমে আমি আমাদের যশস্বী রাষ্ট্রীয় সভাপতি, যার নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বের সর্বোচ্চ দল হয়ে ভারত সরকার তথা প্রায় 80% রাজ্যে ক্ষমতা দখল করে আছে, সেই যশস্বী সভাপতিকে বরণ করার জন্যে আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় সভাপতি দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। বলে ভারত মাতা কি, বলে ভারত মাতা কি। এরপরে মাননীয় রাজ্য সভাপতি মশাইকে বরণ করে নেবেন ডায়মন্ড হারবার জেলার জেলা সভাপতি উমেশ দাস মহাশয়। ডায়মন্ড হারবারের সভাপতি উমেশ দাস মহাশয় বরণ করে নেবেন। এরপরে বরণ করবেন আমাদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবাংলার পর্যবেক্ষক সম্মানীয় কৈলাস বিজয়বর্গীয় মহাশয়কে সাউথ 24 পরগনা ইস্ট জেলার সভাপতি হরেকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়। বলে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। তারপরে আমাদের জাতীয় সহসভাপতি মুকুল রায় মহাশয়কে বরণ করে নেবেন মথুরাপুর জেলা সভাপতি তপন জানা মহাশয়। তারপরে রাষ্ট্রীয় সহ সংগঠন সাধারণ সম্পাদক সম্মানীয় শিবপ্রকাশজিকে বরণ করে নেবেন এই জেলার সহসভাপতি দেবাংশু পান্ডা মহাশয়। তারপরে জাতীয় সম্পাদক পশ্চিমবাংলা সহ পর্যবেক্ষক সম্মানীয় অরবিন্দ মেনন মহাশয়কে বরণ করে নেবেন এই জেলার সাধারণ সম্পাদিকা সবিতা চৌধুরী মহাশয়া। তারপরে প্রদেশের সংগঠন সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয়কে বরণ করে নেবেন মথুরাপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক শ্যামা প্রসাদ হালদার মহাশয়। আমাদের জাতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা মহাশয়কে বরণ করে নেবেন ডায়মন্ড হারবার জেলার সাধারণ সম্পাদক পরিতোষ মণ্ডল মহাশয়।
আমাদের জাতীয় নেতা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা মহাশয়কে বরণ করে নেবেন ডায়মন্ড হারবার জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার মণ্ডল মহাশয়। এবং যারা প্রদেশের পদাধিকারী আছে সকলকেই বরণ করে নেবেন ডায়মন্ড হারবার জেলার জেলা সভাপতি সম্মানীয় সবাইকে বরণ করে নেবেন ডায়মন্ড হারবার জেলার জেলা সভাপতি বাকিদেরকে। প্রথমে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য আমাদের যশস্বী রাজ্য সভাপতি সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি। भारत माता की वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जय श्री राम। प्रथमेই যারা আমাদের কর্মী নেতা এসেছেন বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে তারা কোথাও না কোথাও অবশ্যই বসুন। পেছনে চেয়ার আছে, সবাই বসে যান, কেউ দাঁড়িয়ে থাকবেন না। কেবল যারা মিডিয়ার বন্ধুরা এসেছেন তারা তাদের কাজ করবেন, বাকি এখানেও ভিড় করবেন না, পেছনে চলে যান, সবাই যান পেছনে। সর্বভারতীয় সভাপতি আমাদের কর্মী বৈঠকে এসেছেন, যদি এখানে ডিসিপ্লিন না থাকে তাহলে বাংলার কর্মীদের প্রতি তার ধারণা খারাপ হবে। আপনারা এত জীবন দিয়ে লড়াই করছেন আর কিন্তু এইখানে ডিসিপ্লিন যদি না রাখেন এটা পার্টির পক্ষে ঠিক হবে না। মাননীয় স্বপনদা এসেছেন, স্বপনদাকে আমি স্বাগত করছি ডায়াসে। স্বপনদা আসুন, তাকেও সম্মান দেওয়া হোক। বন্ধুগণ, আমি বলতে আসিনি, আমি বলতামও না, কিন্তু আমার সর্বভারতীয় সভাপতি যিনি খালি আমাদের নয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পার্টির পশ্চিমবাংলায় যার 18 জন সদস্য সংসদের, দেশে 283, 303, রাজ্যসভা আরো 100, এত বড় পার্টির সভাপতি তিনি আমাদের মতো যারা কর্মীরা জীবনের লড়াই লড়ে এখানে পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত করছি তাকে দেখা করতে এসেছেন। সেই সভাপতিকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। আমি তার গাড়িতে ছিলাম, তার গাড়ি তো এত বড় ঢিল মারা, ইট মারা হয়েছে। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের কোনো জায়গা নেই। কিন্তু এটাও জেনে রাখুন, আমাদের সভাপতি রাস্তার থেকে ফিরে যাওয়ার লোক নয়। বিহারের জঙ্গলরাজ আমরা শেষ করেছি, উত্তরপ্রদেশের জঙ্গলরাজ শেষ করেছি, পশ্চিমবাংলার জঙ্গলরাজ ভারতীয় জনতা পার্টির আপনাদের মতো কার্যকর্তারা শেষ করবে। তাই সম্মাননীয় জেপি নাড্ডা আমাদের সভাপতি, তাকে আমি প্রণাম করছি। আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় কৈলাসজি 6 বছর ধরে আমাদের সঙ্গে আছেন, আজকে তারও হাত ভেঙেছে, ইটের গায়ে গাড়ি ভেঙে গেছে, তাকে আমি প্রণাম করছি। আমাদের সর্বভারতীয় সহসভাপতি মাননীয় মুকুলদা, যিনি বুদ্ধি দিয়ে রাজনীতি করে এসেছেন, তারও আজকে আঙুলে হাতে চোট লেগেছে, গাড়ি ভেঙে তাকে পাথর মারা হয়েছে। এবং আমি মাননীয় সভাপতির গাড়িতে ছিলাম, সেখানে বড় বড় ইট মারা হয়েছে। আমাদের সর্বভারতীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা, তার হাতেও চোট লেগেছে, সবার গাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আমাদের অমিতাভ দা সংগঠন মন্ত্রী, তাকেও লেগেছে। মাননীয় রাহুল দা আমাদের পূর্ব সভাপতি, চোট খেয়েছেন। সৌরভ, একাধিক কার্যকর্তা, এত বড় ইট পাথর মারা হয়েছে, গাড়ির কাঁচ ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেছে, চোট লেগেছে। আমি বলছি এই করে আমাদের মন কেউ ভাঙতে পারবে না, পারবে? আমাদের দিল ভাঙতে পারবে না। কিন্তু আমরা যেটা ভাঙবো, আগামী মে মাসে যেন সতর্ক থাকে এই সরকার, যেন সাবধান থাকে। 21 সালের মে মাসে টিএমসি সরকারটা আমরা ভেঙে দেবো। কি ভাঙবো তো? বন্ধুগণ, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা পশ্চিমবাংলায় কি পরিস্থিতির মধ্যে লড়াই করছেন আজ তার নমুনা আমাদের নেতারা দেখেছেন। আর ডায়মন্ড হারবার কার্যকর্তারা, দক্ষিণ 24 পরগনার কার্যকর্তারা হাতে প্রাণ নিয়ে লড়াই করছেন। একাধিক কর্মীকে খুন করা হয়েছে। সেদিন মিছিল হয়েছিল বজবজে, আমাদের কর্মীদের মারা হয়েছে, মহিলাদেরকে পেটানো হয়েছে, বাড়িতে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। আমরা তাকে রেস্কিউ করেছি, পুলিশ দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। পুলিশের সামনে মারা হয়েছে, আজকেও পুলিশের সামনে গাড়ি ভাঙা হয়েছে। আমাদের বাইকে কলকাতাতে কার্যকর্তারা আসছিলেন, তাদের মাথা ফাটানো হয়েছে। 8 জন এখন হসপিটালে আছে, বাকিরা আপনাদের সামনে বসে আছেন। এই পরিস্থিতি আমরা জানি। আমার গাড়ি 10 বার ভাঙা হয়েছে। আমরা কি পিছিয়ে গেছি? আমরা এই 18 জন সাংসদকে পাঠিয়েছি সংসদে। তাই বন্ধুগণ, আজকে পিছনে চেয়ার এই জন্য খালি আছে, এই সংঘর্ষ লড়াইতে বহু কার্যকর্তা এখানে আসতে পারেননি। ফটুগঞ্জে আটকানো হয়েছে, এখানে আমাদের সামনে
সেখানেও আটকানো হয়েছে, মারপিট হয়েছে, এখনো গন্ডগোল চলছে। কিন্তু আপনারা এত বাধা পার করে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, সেই জন্য আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর আমাদের পার্টির যারা নেতা তারা এসছেন আমাদের আশীর্বাদ দিতে, তারা ফিরে যাননি, সেই জন্য তাদেরকে নমস্কার জানিয়ে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ মাননীয় রাজ্যসভাপতি। भारत माता की। इधर से आने वाले जो कार्यकर्ता है वो पीछे से आइए। इधर संजय, इधर से आने वालों को पीछे से भेजिए, पीछे से खोलिए। अपना अपने स्थान पर बैठिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन होने वाला है, पहले बैठ जाइए सब लोग अपने स्थान पर। मंच के लोग भी, गौतम दा, शिशिर दा, मंच से या तो हटो नीचे या पीछे बैठ जाओ। मंच पे कोई मत रुको। देवजीत बैठ जाओ नीचे। मंच के लोग भी या तो नीचे बैठ जाओ। उमेश दा बाद में कराएंगे, बैठो। ये मंच की अपना तफरी बंद करिए। पत्रकारों के अलावा जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं सब पीछे चले जाएं, जरा बैठ जाएं कुर्सी पे। एक भी नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर, एक भी नहीं दिखना चाहिए। भाई साहब मैं आपसे भी कह रहा हूँ, सब एकदम पीछे चले जाइए। हमारे पत्रकार बंधु भी शांति से पूरे कार्यक्रम को लाइव श्रीमान मैं आपसे करेंगे। भी कह रहा हूँ, आप पीछे चलिए, सब लोग पीछे जाके बैठ जाइए, कोई खड़ा नहीं दिखेगा यहाँ पर। बहुत संघर्ष के बाद माननीय अध्यक्ष जी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये पत्रकार के पीछे हमारे कार्यकर्ता खड़े, जरा पीछे चले जाइए। सुन रहे हैं आप? हटो हटो, यहाँ से हटो, सब जाओ पीछे चलिए, पीछे चलिए जरा। ए चलो उधर पीछे, पीछे बैठो उधर जाके। सभी पीछे बैठ जाइए। बहन जी बैठ जाओ पीछे कुर्सी लेकर। सभी मंडल सभापति, ज्योति नीचे जाओ, तुम नीचे जाओ, सब कार्यकर्ताओं को। ज्योति भाई जी नीचे जाओ और सब कार्यकर्ताओं को बैठाओ उधर पीछे। उमेश, सुभाष दा बैठ जाओ नीचे। सुभाष दा, गौतम दा नीचे जाकर देखो। आदरणीय सभापति महाशय, बहुत संघर्ष और चुनौती के बाद हमारे मंडल सभापतियों के बीच में पहुंचे हैं। हम धैर्य से उनके सारे विषय को सुनेंगे। अरुण जी सबको बैठा दीजिए, अरुण हल्दर जी सबको बैठा दीजिए वहां पर। गौतम पीछे जाकर सबको बैठाइए। और मीडिया के बंधुओं से निवेदन है वो बाइट वगैरह लेने का काम कार्यक्रम की समाप्ति के बाद करिए, तो हमारे उचित नेता आपको बाइट देंगे। और सभी पीछे के कार्यकर्ता बैठ जाइए। पीछे जो कार्यकर्ता खड़े मास्क लगाए हुए बैठिए। ब्लू मास्क लगाकर जो कार्यकर्ता खड़े बैठ जाइए। अरुण बैठाओ सबको, बैठाओ सबको। अब इधर से कोई कार्यकर्ता नहीं आएंगे। आप भी भैया, ए दादा, दादा हट जाओ। लाइव चलिए। भारत माता की। पीछे जो खड़े हैं वो नीचे बैठ जाओ। कुर्सी नहीं हो तो नीचे बैठ जाइए, कालीन है वहीं बैठ जाओ नीचे। सब बैठ जाइए नीचे। धैर्य से सभी अपने सर्व भारतीय सभापति जी का उद्बोधन सुनेंगे। पीछे कुर्सी नहीं है तो नीचे ही बैठ जाइए, दरी पर आराम से बैठ के सबको सुनना है। और मेरा मंडल सभापति, जिले के ऑफिस बेरर सबसे निवेदन है, सर्व भारतीय सभापति जो उद्बोधन देंगे वो अपनी डायरी में सब लिखिए। हमने अपने अपने क्षेत्र में जाकर उसको अप्लाई करना है और पूरा कार्यक्रम हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। तो सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। गौतम दा पीछे जाकर, अरुण जी पीछे जाकर सबको बैठा दो आराम से। बोले भारत माता की। একটু জোরে হোক, ভারত মাতা কে। এরপরে যার মার্গদর্শনের অপেক্ষায় আমরা এতক্ষণ ধরে আছি, সেই যশস্বী সভাপতি
মাননীয় জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি মহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি মার্গদর্শন করার জন্য। বন্দে মাতরম। मातरम। नड्डा जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। आज के इस डायमंड हार्बर के पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष और जुझारू अध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हम सबके वरिष्ठ नेता श्री मुकुल रॉय जी, राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, संगठन के सह प्रभारी, संगठन के सह संगठन मंत्री अखिल भारतीय श्री प्रकाश जी, राष्ट्रीय मंत्री अनुपम हाजरा जी, डॉक्टर सरकार, हमारे सांसद राहुल सिन्हा जी, ज्योतिर्मय महतो सांसद, दीपांकर जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता जी, सभी मंडल के सभापति, जिले के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, सम्मानित मंच और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे सब साथीगण, सभी सज्जन वृंद। भाई जरा ये बांटना बंद करो, बांटना बंद करिए। मित्रों, सबसे पहले तो ये श्री अरबिंदो की भूमि, स्वामी विवेकानंद की भूमि, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भूमि और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भूमि को मैं नमन करता हूं और इस बंगाल की धरती को नमन करते हुए प्रेरणा लेता हूं कि किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य के लिए इच्छुक भी है, उत्सुक भी है और पूरी ताकत से आगे बढ़ने का काम कर रही है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, जो आने में मुझे दृश्य देखने को मिला वह इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। इट हैज बिकम अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड ए स्टेट ऑफ इनटॉलरेंस। आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है, इस बात को हमको समझना चाहिए। जब मैं जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अन्यथा कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। यह गुंडा राज जो हमने देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को यहां पर खिलाना है, इस बात को हमको समझना चाहिए। ये जो मेंटालिटी है, ये जो विचार है,
कि विपक्ष को कुचल देना है। मैं इस विचार को कुचलने के लिए प्रजातंत्र के आह्वान करना चाहता हूं और प्रजातंत्र को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मित्रों, आपका आशीर्वाद चाहिए। बंगाल जो संस्कृति के लिए जाना जाता है, बंगाल जो सभ्य भाषा के लिए जाना जाता है, बंगाल जो सभ्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन ममता जी ने जिस तरीके का कृत्य किया है और जिस तरीके से वो सरकार चला रही है, बंगाल जो देश को दृष्टि देने वाला था, आज बंगाल को नीचे लाने का काम पकड़ा है ममता जी ने। इसको हमको फिर से ऊपर उठाना है और सोनार बंगाल बनाना है, इसको हमको समझना चाहिए। क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने यह भाषा सिखाई थी, तू तड़ाक की भाषा? क्या श्री अरविंदो ने यह भाषा सिखाई थी? किसने यह भाषा सिखाई थी? यह संस्कृति की जननी, यह सभ्यता की जननी बंगाल आज ममता जी के राज में जिस तरीके से लोअर हाइट्स पर आ गया है, इसको फिर से ऊंचा उठाना है और बंगाल को फिर से उस जगह पर स्थापित करना है जिस बात के लिए बंगाल जाना गया है। इसको हमको समझना चाहिए। मित्रों, इस बंगाल में पिछले एक साल में 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। 100 कार्यकर्ताओं का तो तर्पण मैंने किया है, 100, और पिछले एक महीने में 8 कार्यकर्ताओं की जानें गई हैं। और आज भी मालूम नहीं हमारे मोटरसाइकिल पे आने वाले लोगों को जिस तरीके से अटैक किया गया। ये मुकुल जी को देखिए किस तरीके से इनको चोट लगी है। अभी कैलाश जी अपना फर्स्ट एड कराने गए हैं। मैं इसलिए सारी बातें आपके सामने कह रहा हूं कि यही डायमंड हार्बर है ना, जहां से ज्योतिर्मय जी ने यहां का नेतृत्व किया था, who was known to be a known parliamentarian, और आज यहां का सांसद संसद में दिखता भी नहीं है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई। इट इज ए शेम ऑन डेमोक्रेसी। यह प्रजातंत्र के लिए शर्म का विषय है। पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है, प्रशासन का राजनीतिकरण हो रहा है। आप बताइए, यह चलने देना है क्या? यह चलने देना है क्या? कमल खिलना है, कमल खिलना है, यही मैं आपसे कहने आया हूं। मित्रों, मैं तो सच में कल से देख रहा हूं, प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है। देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन कोलैप्स कर चुका है, कहीं दिखता नहीं है। अगर हमारी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ना हो तो बंगाल घूमना मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं कि कार्यकर्ता की क्या हालत होती होगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, चुनाव की तैयारी करो, डायमंड हार्बर से भी हम कमल खिलाएंगे। इस बात को मैं आपको संदेश देने आया हूं। आपकी तालियां ये बता रही हैं कि आने वाला अंदाज और आगाज क्या है, ये आपकी तालियां बता रही हैं। मित्रों, मोदी जी ने यहां पर आपके विकास के लिए राशन की व्यवस्था की कि नहीं की? आपके लिए अम्फान में आपके लिए अच्छी व्यवस्था करने के लिए, हर तरीके की व्यवस्था के लिए एडवांस में 1000 करोड़ रुपए दिया गया कि नहीं दिया गया? लेकिन यहां चाल चोर और त्रिपाल चोर, क्या है ये? चावल की चोरी किसके यहां मिले? टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर में। क्या भ्रष्टाचार है। और ममता जी कहती है 75% कट मनी, 75% पार्टी को, 25% डिस्ट्रीब्यूट कर दियो। क्या भाषा है, क्या तरीका है, क्या सोच है, किस तरीके का भ्रष्टाचार है? आप बताइए, मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता के लिए 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति भिजवाया था कि नहीं भिजवाया था? और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने चोरी की कि नहीं की? मित्रों, इनको अगले चुनाव में घर बैठाना है और कमल खिला करके भाजपा लानी है। इसकी हमको चिंता करनी चाहिए।
आप बताइए, अम्फान में 1000 करोड़ रुपए एडवांस दिया था कि नहीं दिया था? वो पैसा खर्च नहीं हुआ, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, और उसके बाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि सीएजी से इसका अकाउंटिंग कराओ, इसकी ऑडिटिंग कराओ। कहा कि नहीं कहा? और ममता जी सुप्रीम कोर्ट गई कि नहीं गई? भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। भय कौए, भय काहे का है? काहे का भय है? भय इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार किया है, अनाचार किया है। आप बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में 4,67 लाख लोगों को 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवर देने का तय किया था कि नहीं तय किया था? किया था कि नहीं किया था? और ममता जी ने उसको रोका है कि नहीं रोका है? रोका है कि नहीं रोका है? अब आपने इनको अगले चुनाव में यहीं रोक लेना, इनको यहीं पर रोक देना, और आयुष्मान भारत हम लेकर के आएंगे और 4,67 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का प्रति साल हेल्थ का कवर देंगे। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप बताइए, 70 लाख किसानों को 2-2 हजार रुपए, 6,000 रुपए साल का मिलना था कि नहीं मिलना था? मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कैसे मिलेगा? क्यों नहीं मिलता है? ममता बोलती है आमा के दिए दाओ, आमा के दिए दाओ। किसान के दिए दाओ नहीं, आमा के दिए दाओ। कट मनी, कट मनी, कट मनी। आपने इलेक्शन में इनको आपने छुट्टी करनी है, इनको आराम देना है, और भारतीय जनता पार्टी को काम देना है, ताकि 60-70 लाख किसानों को हम उनका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी का पहुंचा सके। इस बात की हम कोशिश कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप बताइए, गरीब आदमियों के लिए घर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? 2 कमरे, 1 बाथरूम, 1 किचन, कोर्टयार्ड बनना चाहिए, पक्का कि नहीं? और प्रधानमंत्री जी ने 4,500 करोड़ रुपए दिया है। 3,000 करोड़ रुपए पहली किस्त में दिया है। ममता जी खर्च करबो ना, करबो ना, कट मनी, कट मनी, कट मनी। आप बताइए, ये प्रधानमंत्री आवास योजना पे खर्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां झुग्गी वही मकान मोदी जी का चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो कमल खिलाना चाहिए और तृणमूल को आराम देना चाहिए। इसकी हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मोदी जी ऊपर से पैसा भेजते हैं, यहां आपके लोटा में ममता का छेद है। जो पैसा जाता है सब कट मनी, कट मनी, कट मनी। अब बीजेपी का सरकार लानी है, डबल इंजन की सरकार लानी है। ऊपर से मोदी जी पैसा देंगे और बीजेपी यहां पर जनता में लगाएगी और उसके लिए खर्च करेगी। इस तरीके की हमको व्यवस्था करनी है, और इसीलिए बंगाल को एक नए विकास की दृष्टि से चलने की जरूरत है। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा, हर मंडल अध्यक्ष हर महीने, अभी 4 महीने पूरा चक्कर लगाए और सबके साथ घूम करके सारे शक्ति केंद्र में जाए और शक्ति केंद्र वाले सभी बूथ पर जाए। मैं आकर के देखा, रास्ते में साधारण आदमी मुझे ऐसे ऐसे करके अभिवादन कर रहा था। यहां परिवर्तन आ चुका है, लोग ममता से ऊब चुके हैं, उनको छुट्टी देना चाहते हैं। आप उन तक पहुंच जाइए, आपका वोट उनको मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। मैंने सारे रास्ते देखा है, जनता त्रस्त है, जनता तंग है, उनसे छुट्टी पाना चाहती है। लोग डर डर के भी हाथ हिला रहे थे। उनके पास कोई झंडा नहीं था, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो साधारण जनता थी, लेकिन वो कह रही थी कि वो तृणमूल से त्रस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्वागत के लिए आतुर हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं मित्रों, हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए। जनता उनका इंतजार कर रही है, जनता आयुष्मान भारत चाहती है,
जनता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चाहती है, जनता प्रधानमंत्री आवास योजना चाहती है। हमारी मोदी जी की 80 स्कीमें हैं जो बंगाल की धरती पर लागू नहीं हो रहे हैं, उसको लागू करने के लिए बंगाल की जनता आतुर है। आपको जनता के बीच में जाना होगा और मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करने आया हूं, आप आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होगी। बंगाल में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और डायमंड हार्बर में भी कमल खिलने वाला है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए आपके बीच में ज्यादा न रहता हुआ मुझे आगे कार्यक्रम के लिए भी जाना है। समय देर हो गई, मेरे स्वागत करने वाले लोगों ने रास्ते में मेरा बहुत समय लिया, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचे हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि नई प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विचारों की छूट होगी, विचारों का इंडिपेंडेंस होगा और विचार के माध्यम से हम चुनाव भी जीतेंगे और लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा जी महाशय के। एरपरे আমাদের আজকের যে এই বিভাগীয়